online training on advanced CATIA, advanced design with CATIA. Okay, so the objective of today's session is today we are going to discuss about the introduction of CATIA. Yesterday I given the brief introduction about CATIA. Okay, please mute your side. Okay, thank you. And we'll see the interface of CATIA. Second one is third one is the basic setting of CATIA. I will show you what are the basic settings in the CATIA. The next, the brief workbenches of various workbenches in the CATIA softwares. Then we'll go for the conclusion. Then that is the today objective of the second session. So yesterday I briefed the about CATIA software. The full form of CATIA. The so many students are participants. They don't know the software full form. So the CATIA V5 R21 in the market, there are the so many versions and release are available, but we are using the CATIA V5 R21. So the meaning of C is computer, A is aided, T indicates three-dimensional, and I indicates interactive, and A means applications, V means the version, and R is the release. Okay, we are using the 21 release is 21. Okay, so this is the full form of CATIA V5 R21. Okay, computer aided three-dimensional interactive application. Okay, next we'll move forward. The CATIA was developed by the Dassault System softwares in 1977, and there's after several new versions are came in the market. So those are I mentioned here the few of them. The CATIA V5 R7 is released in the year of 2016. Don't make the confusion, sir. R17 is what? So it is in the 2017. It is wrong message to you. Okay, it is a release year is 2016. The revision, that's why I'm telling that is a release or revision is somewhat different. So R is the R17 means in the 2016 they are making the some revisions are there. So that is the release part. Okay. In the 2018, CATIA R18 is released in the year of 2007, and uh, CATIA R19 is released in the 2018, and CATIA R20 is released 2010, and CATIA R21 is released in the 2011. CATIA V5 R23 is available in the market. It is 2013. So there are the so many uh, uh, CATIA versions are available in the market. So just am I using CATIA V5 R21, even though the CATIA started from V1, V2, V3, V4 and V5, V6. These are the various versions are available in the market. Till yet they are going to try to bring the V7 also. Okay, that is not in the market available. So right now in the market we have only the V6. Okay, let it be. That is not we are going to discuss in the later case in the detail of the theory part. Now I'll come to the so it is our motto of the 1 month duration course. In that we are going to discuss about the various models like advanced and basic sketchers and part designs, assembly, drafting, generative shape design, DMA, kinematics, NC machining. So many things are there. So I will show the just a minute. I will come back. I'll go to the just a minute. I will minimize it. Okay. So just I will close the software. Though I hope all of you install the CATIA software in your computer. So every day I will take the hands-on program. Once I given the instruction to you, you can practice with simultaneously with me. Then only you can practice all the commands and assignments and live projects. Okay. So double click on the icon. That icon is already once you installed in your computer, the icon will be displayed on your desktop. That is the icon is itself indicates DSS. So what is the meaning of DSS? Dassault System Software. The company has developed by in the 1977. That is the DSS. Okay. Now I am using the CATIA V5 R21.
computer aided three-dimensional interactive applications, version 5, release 21. Okay, now double click on the software, wait for 1 minute or few seconds. The software will be open. You will get the starting error. Okay, so just you click on OK button. Okay, click OK. Again, you will get one more dialog box. Again, you can click on OK. Now the complete software. Okay. Okay. Is there any interruption? Please let me know, sir. Okay. 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 So by default, the software is goes to the product. Okay. Once you open the CATIA software, just a minute. We have to close from this corner. That is a close. By default, it is open in the product. You can close it. Okay. I will tell you the basic setting. Now it is in the wide screen. Uh, After that, you click on the start. Okay. Start. In that we are getting the so many workbenches are there. Infrastructure, in that infrastructure we have the sub workbenches are there, but we are talking about the maximum in the case of mechanical, because all of our related to the mechanical and automobile students are there. So that's why I'm focusing on the uh, only the mechanical workbenches. So in the CATIA, we have around minimum 108 to 150 workbenches are there. Among them, you have to learn minimum five, and maximum 15 is enough for us to become a design engineer. So in that mechanical design, we have to learn from the starting one is sketcher, part design, assembly, then go for the drafting. Okay, these are the, and one more is the generative sheet metal design and wireframe and surface design. Totally how many workbenches we are going to get in here? The one, two, three, then four, five to six workbenches we are going to learn from the mechanical design. Then you'll go for the shape design. In that we have to learn one is the generative shape design. That workbenches is most probably used in the automotive sector and aerospace design, and almost all it is most familiar software for the surface design. Okay, it is a very uh, effective software compared to the other softwares like Creo, Unigraphics, and SolidEdge, SolidWorks. Okay, that is the most powerful tool or workbenches in the CATIA software. That is a generative shape design. It is also called as surface design. Okay, we will discuss in the later part for the basic as well as advanced part. Okay, then we'll go for the analysis. In that you have to make the two analysis are there: advanced machine tools. Another one is the structural generative structure analysis. Okay, so in this we have to make the machine part as well as the analysis, but you will not get the accurate result in the CATIA for the analysis part. We have the separate softwares like Hypermesh, ANSYS, and CFD. There are the so many analysis tools are there for the mechanical and automobiles. We are going to do the basic analysis in the CATIA software by using the analysis and simulations. So if you are getting the more time, then you will go for this workbenches also. Okay, so there are the so many workbenches. I will explain one by one in the later case. You can click on any main workbenches. Will get the so many sub workbenches are there. So you can count the total around 108 to 150 workbenches are there. You can take on the license version. You will get the 150 workbenches are there. The companies are using particular model or particular domain or particular workbenches for their company profile. Okay, so let me come to the workbenches now. Some basic setting. Click on the mechanical design, then go for the sketcher or part design. So I want to click with the sketcher. That will go directly to the part design. Just I will show you. Okay, here it's coming. That is a new part. Okay, so I want to click this. While you are starting the CATIA software, you will get the enable hybrid design. So please switch off uh, this box, because it will take the hybrid property of the design. Okay, so suppose you are making the some hybrid design part. At that time you have to click on that. I will show the what is the meaning of this
enable hybrid design. Okay, so before you are a learner beginner, then you can switch off this button, then click on OK. Okay, now you are entering into the workbenches. Okay, so here we are the so many workbenches are already sorry, so many tools are there. Just I will show the interface of CATIA software. This is the interface. Here at the right top corner, what you are getting, the partisans. Okay, just I will close once again. Start mechanical design. You are clicking on the which workbench? Sketcher. Still you are entering into the partition. Okay, this is the your workbench where you are standing right now. We are standing in the part design workbenches. So click on here. What you are getting? Welcome to the CATIA. There is no any shortcuts are there. Okay, there is no any workbenches. So just I will show you the one basic setting right now here. What are the workbenches you are going to work? So you have to make a shortcut of that workbenches. Okay, because already we have the so many workbenches in the CATIA inbuilt. So I want to work with only 5 to 6 workbenches, so you can make it the shortcut. Okay, okay, आप लोग क्या करते हैं कभी कभी मोबाइल में ओके, कभी कभी आपका मोबाइल में शॉर्टकट्स रहते हैं, तो आप क्या करेंगे और उसको शॉर्टकट बना के डेस्कटॉप में वगैरह सेव करते हैं ना। सपोज यू आर वर्किंग विद माई कंप्यूटर नेटवर्क, ऐसा करते हैं आप। तो इसीलिए कैटे में भी बहुत सारे वर्क बेंचेस रहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक एज ए shortcut of the workbenches. So right click over here, anywhere you can right click in the toolbars, go to the customize. Okay, wait, in this you will get the toolbars. Okay, तो अभी इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सेलेक्ट असेंबली का, सॉरी आपको असेंबली चाहिए ना, तो असेंबली के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर एरो के ऊपर क्लिक कर दीजिए, दैट विल शिफ्ट टू द राइट साइड। यू डोंट वांट, अगेन यू ब्रिंग बैक। समझ में आ गया ना आपको? असेंबली के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर लेके जाना है। जस्ट आई वांट टू वन मोर कमांड, आई वांट वर्क विद द ड्राफ्टिंग, तो मेरे को ड्राफ्टिंग चाहिए, तो इसके ऊपर क्लिक करो और इसके ऊपर लेके जाओ। नेक्स्ट, जस्ट आई विल गिविंग द एग्जांपल्स, यू कैन टेक एनी वर्क बेंचेस लाइक दिस। सो आई वांट द पार्ट डिजाइन, तो पार्ट डिजाइन के ऊपर क्लिक करना है और इसको राइट हैंड साइड में लेना है। सो अगेन विल गो फॉर द स्केचर, इसके ऊपर क्लिक करो और इसके ऊपर लेके जाओ। अगेन विल गो फॉर द एनी वन, just I will take the one more example over here. Uh, for example, I will take generative shape design. Okay, generative structural analysis. Okay, by mistakenly I had taken the freestyle. आपको बाई मिस्टेकली आ गई, आपको नहीं चाहिए, तो क्या करना है कि इसके ऊपर सेलेक्ट करो। अगेन यू सेंड इट बैक, इसको वापस दे सकते हैं। नाउ क्लोज इट। सो व्हाट विल हैपन, इसमें से क्या हो गया आपको? तो आई वांट टू शो यू। सो क्लिक ऑन द वर्क पेजेस। पहले क्या था आपके पास, वेलकम टू कैटिया था, तो अभी क्या होगा इसके अंदर? नाउ सी हियर, सो वी गॉट द शॉर्टकट्स। इज इट क्लियर? तो आपको इसके ऊपर में बहुत सारी शॉर्टकट मिल गया। तो यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द असेंबली, स्केचर, जनरेटिव शेप एनालिसिस, ड्राफ्टिंग, पार्टीशन। You can add the number of workbenches like this. You have to add maximum 12, not more than 12. Keep in your mind, आप कितना ऐड कर सकते हैं इसमें? 12 ही ऐड कर सकते हैं, इसके ज्यादा नहीं ऐड कर सकते इसमें। ओके, सो दिस इज वन पार्ट। तो हाँ, यस सर। डियर स्टूडेंट्स, ओके, someone is asking, sir, someone is asking, please repeat, so I will go for the repeat. Okay, so students, if you are getting any difficulties, it is a basic part now. So I will repeat the part. Okay, no issue. You can ask the question there only. Okay, okay.
Just I will show the software. Just I want to repeat once again. The someone is asking, please repeat the session. This part. Okay. Now start mechanical design. So now see here. Already the shortcut has created. Then that's why it is showing the assembly, drafting, part design, sketcher, एंड जनरेटिव शेप डिवीजन। इसमें आपको क्या दिख रहा है, असेंबली दिख रही है, पार्ट ड्राफ्टिंग दिख रही है और पार्ट डिजाइन स्केचर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने इसको पहले रिमूव करूंगा, ऑलरेडी मैंने ऐड किया था ना, इसीलिए आपको क्या दिख रहा है इसमें, यू आर गेटिंग ऑल द शॉर्टकट्स। सो जस्ट आई विल शो यू हियर कस्टमाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रिमूव, पहले अभी मैं क्या करूंगा, सारी को रिमूव कर देता हूं। ओके, जस्ट आई विल शो यू, आई वांट टू रिमूव ऑल द कमांड्स। ओके, नाउ स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन, पार्ट डिजाइन। ओके, देखो अभी हम कौन सा वर्क बेंच में, पार्टीशन में। सी हियर व्हाट इट शोइंग, क्या दिखा रहा है आपको, वेलकम टू कैटिया, देयर इज नो एनी शॉर्टकट्स। इसके अंदर कुछ शॉर्टकट्स है क्या, नहीं है। सो आई विल ब्रिंग, नहीं नहीं अभी आपको नहीं आ रहा है क्या, हेलो, हेलो, ओके, यू कैन प्रैक्टिस विथ अलोंग विथ मी। ओके, जस्ट क्लोज द विंडोज, आप इतना क्लोज करो, किया आपने, यस और नो। ओके, गो टू द स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन, पार्ट डिजाइन। ओके, at the top corner you can see here, the part design is showing, top right corner the part design workbench is showing. Right now we are here, click on left click, दिखा आपको, welcome to CATIA V5, not showing, is it clear? I think your doubt is clear, I think your doubt is clear. Okay, very nice. uh, okay, good. If you are getting any doubts you may ask the question, I will repeat that part. Okay, dear participants, very good question. Okay, now I will come back. Right click on toolbar, right click anywhere in the toolbar. Okay, so go down, it is a customization. See here, here the customization. Otherwise go to the tools. Here also one more option is there, the customization, आप इधर भी कर सकते हैं। ओके, कहाँ पे, इधर टूल में भी रहेगा, टूल के अंदर जाओ, कस्टमाइज। देखो आपको कौन सा चाहिए, फर्स्ट आप कौन सा सीख रहा था, स्केचर, तो पहले आपको स्केचर सेलेक्ट करना पड़ेगा। which workbench you want, I want the sketcher workbench, so select the sketcher and bring it to right side, उसको राइट में लेना है। सेकंड स्केचर के बाद हम कौन सीखने वाले हैं, कौन सा पार्ट सीखने वाले, पार्ट डिजाइन। देयर इज अ पी, पी, ओके आई गॉट इट, पी, इसको इधर लीजिए। ओके, क्लिक ऑन दिस अप एरो। ओके, सेकंड थर्ड वन इज असेंबली डिजाइन, असेंबली, देन आई विल गो फॉर द ड्राफ्टिंग, पी, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट DMU kinematics, आप कौन से भी ले सकते हैं। सो जस्ट आई टेक एन एग्जांपल ऑफ 4 to 5 असेंबली वर्कबेंचेस, क्लोज किया आपने। ओके, नाउ क्लिक ऑन द सेम पार्ट, पार्ट डिजाइन। तो अभी देखिए व्हाट विल गेटिंग, वी आर गेटिंग स्केचर, पार्ट डिजाइन, असेंबली, ड्राफ्टिंग, एवरीथिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, समझ में आ गया आपको, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो अभी देखो इसमें क्या डिफरेंस होगा, स्टार्ट में आपने क्लिक किया तो आपके पास ये शॉर्टकट आ गया, पहले मैंने स्केचर किया था, पार्ट डिजाइन, असेंबली, ड्राफ्टिंग, डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक किया था, इसके ऊपर अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज एवरी टाइम आई एम नॉट एबल टू सर्च इन द इनसाइड। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैं जो भी वर्कबेंच के ऊपर वर्क करना चाहते तो मैंने इधर ही शॉर्टकट बना दिया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया ना, देन आई विल गो अनदर पार्ट, यस और नो, very good, very good. So I will go for the one more important setting, uh, that is very important for all the design engineers. So basically in your software, your working plane. Okay, so just I will give the some interface of CATIA. So this is called as, just I will show you. Okay, मैंने आपको इधर दिखाऊंगा,
सो आई एम राइटिंग ऑन द सॉफ्टवेयर, आपको राइट नहीं कर सकते, मैं राइट कर सकते इसके ऊपर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन ट्री, समझ में आ रहा है। हम इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिकेशन ट्री बोलते हैं। और दिस इज द plane area, these are the planes, xy plane. So just I will show you later case, just remember there is a xy plane, yz plane and zx plane. Okay, this is the xy plane, yz plane and zx plane, there are the three planes are there. Okay, next, this is called as the compass, इसको हम क्या बोलेंगे, कंपास। while you are giving the interview will ask the question what is the function of compass, just you have to uh, identify where is the compass, it is right side और टॉप कॉर्नर, ये कहाँ पे रहेगा, आपका राइट हैंड का ऊपर टॉप कॉर्नर पे रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज कंपास। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, प्लेन सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एज प्लेन सिस्टम। एंड वन मोर, द बॉटम कॉर्नर इधर आपको दिख रहे हैं ना, इट इज कॉल्ड एज coordinate axis or geometrical tree. Please note down geometry. I will give the notes. Don't worry. I will give the notes of this software. Okay. This is called as हम क्या बोलेंगे इसको, geometrical tree or coordinate axis. And the blue color indicates, आपको दिख रहा है ना blue color, shaded blue color background. This is called as working area. हम क्या बोलेंगे, वर्किंग एरिया। आप जो भी ड्राइंग करते हैं इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। सो वन मोर इज हियर द selection of command, this is a selection of command, आप जो भी कमांड सेलेक्ट करते हैं आपको इसमें दिखेगा। एंड these are the important toolbars, okay, and this is also view toolbar, and there are the आपको जितने भी दिख रहे हैं, this is the various toolbars to use the CATIA software, okay, and this is the standard toolbars। हम कभी कौन से भी सॉफ्टवेयर यूज ओपन करो तो उसमें आपको स्टैंडर्ड दिखेगा। आपने एमएस ऑफिस भी ओपन किया, यू विल गेट द फाइल, एडिट, व्यू, insert, tool, window, it is common for all the softwares, that is called as it is a standard toolbar। okay, क्लियर होगा आपको, मैं आपको पीपीटी में भी दिखाऊंगा। उसके बाद एक एक का एग्जांपल में बताते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट इज हियर द स्पेसिफिकेशन ट्री, जस्ट अ मिनट, please mute your side, someone is okay. Now I will go back to the my ppt that I will show in that part. So it is the interface. So dear students, please check it over here. This is called as a specification tree, already I shown in the software, that is called as specification tree. If you want, you can take the screenshot. I will share the same ppt to the uh, registered student, not for the group students, okay, those who are attending the regular, then only I will give the material to the students, okay। हम इसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस प्लेन्स और प्लेन सिस्टम बोल सकते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन सिस्टम, इट मे बी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन, ऑलरेडी आपको इधर दिख रहे हैं। नेक्स्ट, वन मोर इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज कंपास, मैंने आपको बताया था, दैट इज अ कंपास, ओके। एंड दिस इज अ करंट वर्क बेंचेस, मैंने बताया था आपको, आपने कौन सा वर्क बेंच में खड़े, पार्ट डिजाइन होगा, स्केचर होगा, असेंबली होगा, जो भी है। नेक्स्ट, these are the toolbars, okay, don't think about that name, that is called as toolbars of CATIA. And there is a axis orientation or geometrical tree, this is also called as geometrical tree. Then these are the standard menu toolbar, there is a start menu, okay, the blue color indicates working area. These are the important interface of the CATIA software। Anybody having doubt, किसी को doubt आ गया इसमें, I think it is okay, very good, okay। Please remember the important terms over here. The only the two things are there. One is the specification tree. Okay. Now I'll come back to the workbench. Sorry, I'll come back to the software. నువ్వు ఫాస్ట్ స్లో రెస్పాన్స్ ఉంటుంది ముందు కోలతిరే అది డ్రా విన్నారు Network. స్లో So we'll come to the next part, next setting. Uh, so I will show you one more is a plane system and axis system. How to work with the plane system and axis system. आपको दो तरीके से काम कर सकते हो. One is the
प्लेन सिस्टम बाय डिफॉल्ट इट इज इन द प्लेन. आपका कंप्यूटर में कैसा दिख रहा है? प्लेन बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा. यस और नो? एनी वन ऑफ यू प्लीज. आपको जो कंप्यूटर में अभी दिख रहा है बहुत छोटा दिख रहा है, बट मेरा स्क्रीन में बहुत बड़ा दिख रहा है. कैन यू एबल टू जूम इट? जूम कर सकते क्या आप? Yes. So there is a one of the important setting is there. I will tell you that setting. Please note it properly. Okay. Go to the to please mute your side. Someone is okay. Go to the tools. Please write down this setting. Okay. Otherwise you can practice with me. Just you follow me. Start. Sorry. Tools. Go to the option. Okay. Then uh, we are getting some very आपके पास इतना दिखेगा, बहुत कम दिखेगा. You can press the control and scroll your mouse scroll. Okay. आपको क्या करना है? माउस का जो मिडल बटन है ना, उसको थोड़ा आगे पीछे करना है. शिफ्ट प्रेस द कंट्रोल की एंड एंड डू लाइक दिस. स्क्रोल योर माउस बटन. समझ में आ गए? अभी इनिशियली आपका इसमें इतना रहेगा, तो समटाइम दिखेगा भी नहीं है. तो आपको क्या करना है? कंट्रोल एंड यू कैन press your third button. Scroll up and down. Okay, up and down. Is it clear? आपको जितना चाहिए उतना रख सकते हैं. Okay, I will close it now once again. Go to the start, sorry, tool. Go to the option. आपको इसमें दिख रहा नहीं, तो अभी क्या करना है? तो थोड़ा सा बड़ा कर दो. हाउ? कंट्रोल एंड कंप्यूटर मिडल बटन अप एंड डाउन. उसको अप एंड डाउन किया तो जूम इन एंड जूम आउट. कंट्रोल as well as middle button of mouse up and down. Is it clear? समझ में आ गया आपको? Please reply me. Okay. Then what is our intention? There are the so many settings are there. इसमें बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं, बट अभी हम किस पे जा रहे हैं? आई वांट टू मेक द प्लेन सेटिंग नाउ. प्लेन के बारे में हम सेटिंग कर रहे हैं. तो इसके लिए आपको किसमें जाना है? इंफ्रास्ट्रक्चर. देखो इसमें प्लस है, तो प्लस के ऊपर आपने क्लिक किया. दैट द ट्री इज एक्सटेंडेड. पार्ट सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके अंदर पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. यू आर गेटिंग दिस पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. क्लिक ओवर हियर. विल विल गेट द डिस्प्ले. इसके अंदर डिस्प्ले का जो पार्ट है, तो इन दिस एट इनिशियली इट इज द 10. प्लीज आपके जो इसमें है ना कंप्यूटर में 10 रहेगा. तो यू कैन मेक इट द एक्सिस साइज सिस्टम. यू कैन मेक इट अप टू 100. बहुत बड़ा दिखेगा. तो इन द इंटरव्यू दे विल आस्क द क्वेश्चन. प्लीज नोट डाउन. इंटरव्यू में आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लेन सिस्टम इन काटिया. कैटिया में प्लेन साइज का कितना स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू द डिजाइन इंजीनियर. दैट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड 80% in the interview panel. Okay, so at that time the standard size of the plane system is 19 to 20. देखो डिजाइन इंजीनियर जो रहता है ना, 19 टू 20 mm उसका साइज है इन mm. 19 टू 20 mm का साइज पे काम करते हैं. So because of our eye catching, I will put as more than 35 to 40. ओके, मैं इतना रखूंगा. अभी आपके हिसाब से देखो, मैं 20 रख देता हूँ, कितना करेगा दिखेगा? देखो बहुत कम हो गए. यस और नो? द प्लेन सिस्टम इज ऑब्वियसली लेस. Again, I will show you tools. Go to the option. Then again infrastructure, part infrastructure. Then display. Again, I will make the sizes increases. So see the plane system now it is again increases. I hope you understand this part. समझ में आ गया आपको? Okay, very good, very nice. If you are getting any difficulty, you may ask the question. Otherwise, you give me put a question in your chat box. Okay, आप उसमें करते जाने का. चैट बॉक्स में यस नो करते जाने का. ओके, बिकॉज इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग इन द कैटिया सॉफ्टवेयर. नाउ आई विल गो फॉर द सेकंड वन. नाउ इट इज द प्लेन सिस्टम. यू कैन वर्क आइदर प्लेन सिस्टम और
एक्सिस सिस्टम आप दो तरीके से वर्क कर सकते हैं, प्लेन सिस्टम तो हो गए अभी। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज एक्सिस सिस्टम। इसमें क्या करना है आपको, गो टू द इंसर्ट, गो टू द एक्सिस, देखो इंसर्ट में है ना आपके पास, इंसर्ट एक्सिस, देन ओके, you can give the dialog box is appear over here, the axis is okay, means we have the, you can see the specification tree। आप देखो स्पेसिफिकेशन ट्री में क्या दिख रहा है आपको, पेन सिस्टम भी है, देन एक्सिस सिस्टम भी है, देखो दोनों भी आपके पास। आई विल एक्सप्लेन यू द लेटर पार्ट। कलर कोड आपको दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहे हैं, इधर ब्लू दिख रहे हैं, मैंने जो भी पेन सिलेक्ट कर रहे हैं, what are the plane I'm selecting, simultaneously the pen is going to be blue color, just you can observe the meaning is there, the color coding is there, just I will explain in the later part what is the color of yellow, green, white, and there are so many colors are there, the color is help you to read your drawings in the later part। ओके अब जैसा एडवांस लेवल पे जाते हैं तो कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी मैं उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑल आर इन द बेसिक लेवल। प्लीज म्यूट योर साइड, आई एम रिक्वेस्टिंग पार्टिसिपेंट प्लीज म्यूट। ओके थैंक यू। हाँ यस, हाँ ओके ओके, जस्ट आई एम रिपीट। देखो अब आपको क्या करना है, आप पेन सिस्टम तो आपको समझ में आ गए, आर यू कंफर्टेबल विथ हिंदी और इंग्लिश? ओके 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 फाइन, I will explain in the both. First of all, I will take some words in Hindi or some words in English because so many students in diploma students also there, so I'm preferring both the language. Okay, fine. Now come to the point. How to insert एक्सिस, देखो अभी आपका जो आपके पास जो भी है मैं इसके ऊपर लिख के दिखाती हूँ, दिस इज अवर स्पेसिफिकेशन ट्री, मैंने आपको बताया था, इसके आगे कुछ भी नहीं है, देखो ये पार्ट बॉडी तक ही है अपने पास, इसके नीचे कुछ है क्या, नहीं है। तो अभी मैं कुछ इंसर्ट करते तो इसके अंदर आएगा, स्पेसिफिकेशन ऐड होते जाएगा, ट्री कैसे कैसे ऐड होते, तो हमने जो भी काम किया ना इसके अंदर ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो अभी उसके बारे में हम इसके बाद में इसके ऊपर ही आऊंगा, स्पेसिफिकेशन ट्री के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। ओके, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर वाइल बेसिक सेटिंग्स। ओके, ये समझ में आ गए तो आप आगे कर सकते हैं कुछ, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। इंसर्ट में जाने का, तो एक्सिस सिस्टम, देखो मैं सडनली एक्सिस के ऊपर क्लिक किया तो क्या आएगा, स्पेसिफिकेशन ट्री पे देखो वन मोर टर्म इज एडेड, पहले नहीं था ये तो इसके अंदर ऐड हो गए, तो ओके करते तो इसके अंदर आ गए, इसके ऊपर क्लिक करके देखो इसके अंदर भी है, एक्सिस के अंदर देखो बहुत सारी है, इसके अंदर क्या क्या है, द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई जेड, जो भी पॉइंट्स है सब आएगा इसके अंदर, तो लेट इट बी। अपने पास अभी दोनों भी अवेलेबल है ना, एक्सिस भी है और पिन भी है। नॉर्मली द एक्सपर्ट पर्सन आर प्रिफरिंग एक्सिस सिस्टम, जो भी डिजाइन इंजीनियर होते हैं तो कंपनी में जो काम करते हैं तो क्या प्रिफर करेगा, एक्सिस सिस्टम प्रिफर करते हैं। फॉर द बिगिनर्स, तो बेसिक और फंडामेंटल्स जो सीखते हैं कैटिया पहली बार, यू आर द न्यू फैमिली मेंबर ऑफ कैटिया, तो आप क्या करेंगे, प्लेन सिस्टम प्रेफर करो तो आपको इजी रहेगा। तो अभी दोनों भी आ गए सर, मैं क्या करूँ, तो इसके लिए क्या करने का, फिर से टूल में जाना है, इसके अंदर देखो शो और हाइड, आपके पास दोनों भी दिख रहे हैं ना, शो और हाइड, अभी मेरे पास दोनों ही है, उसके अंदर इसको हटाना है, किसको, प्लेन सिस्टम, हाइड ऑल द प्लेन सिस्टम, देखो अभी क्या हो गए, सारे प्लेन सिस्टम उड़ गए इसमें से। नाउ वी हैव ओनली द एक्सिस सिस्टम, समझ में गए। देखो मैंने कौन सा भी एक्सिस के ऊपर से क्लिक करते तो ऑलरेडी आपके पास है, डोंट वरी अबाउट दिस, दैट इज अ वाई जेड प्लेन, एंड एक्स वाई के ऊपर के तो देखो एक्स और वाई सेलेक्ट हो रहे हैं, और इसके ऊपर मैंने लिखे गए तो दैट इज जेड एक्स प्लेन। So in this way, sir, I don't want the axis system. I'm repeating. Okay. Someone is asking to me, repeat this part. Okay. Again, I will go come back. Don't worry. Okay. Okay. See here. Now we are in the plane system. Go to the insert axis. Okay. अपने पास दोनों भी है अभी। Okay. Now इसके बाद हमको क्या करना है, एक के साथ काम करना है, आइदर प्लेन सिस्टम और एक्सिस सिस्टम, इट इज अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड है मैं किसके साथ काम करना चाहते हैं, इट इज अ प्लेन सिस्टम और एक्सिस सिस्टम। नॉर्मली आई एम गोइंग टू प्रीफर बोथ। ओके, एज ए डिजाइन इंजीनियर वो क्या करेगा, एक्सिस सिस्टम प्रीफर करेगा, तो अभी मैं किसी को एक को घटाना है इसमें से, तो कैसा करेंगे, तो हाउ इंसर्ट सॉरी,
सॉरी सॉरी, टूल्स हाइड ऑल प्लेन सिस्टम, मेरे को प्लेन नहीं चाहिए तो प्लेन को क्लिक करना है तो चले गए। और टूल्स हाइड ऑल एक्सिस सिस्टम, तो एक्सिस भी चले गए। अब बोथ एक्सिस एज वेल एज प्लेन दोनों भी हाइड हो गए इसमें से। सर मेरे को वापस प्लेन सिस्टम चाहिए। टूल्स शो ऑल प्लेन्स, देखो ओनली प्लेन सिस्टम दिखेगा। और टूल्स शो ऑल एक्सिस सिस्टम, दोनों भी आ गए। तो इट इज डिपेंड अपॉन यू, दोनों भी रख सकते हैं और दोनों को भी निकाल सकते हैं, और एक को भी रख सकते हैं आप। तो नाउ आई एम क्लिकिंग ओनली द प्लेन सिस्टम, आई एम हाइडिंग ऑल एक्सिस सिस्टम। आई होप you understand this part. Yes or no? Any one of you reply me. Very good. Okay. So already you know the two settings. Now I'll come to the uh, axis system. अभी सॉरी, स्पेसिफिकेशन ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्पेसिफिकेशन ट्री का सेटिंग क्या होते हैं। ओके, तो नॉर्मली आपने जो पैटे इंस्टॉल करते तो आपको बाय डिफॉल्ट यही सिस्टम आएगा। तो इसके अंदर बहुत सारी सिस्टम्स रहते हैं। देन विल गो फॉर द वन बाय वन। ओके, सो सी हियर अगेन, गो टू द टूल्स। तो टूल्स के ऊपर क्लिक करते नहीं तो राइट क्लिक भी कर सकते हैं आप। इधर इधर भी देखो, राइट क्लिक किए तो भी आएगा। अगेन यू विल गेट द, सॉरी, राइट क्लिक, गो टू द ऑप्शंस और कस्टमाइजेशन, इसके अंदर रहता है कस्टमाइज, इसमें भी कर सकते हैं आप। टूल्स, गो टू द ऑप्शंस, समझ में आ गए। if you are getting any difficulties, please give me the reply. I will be stopped there and again I will come back. Okay, I am repeating once again. Tools, options, अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन ट्री। सो इन द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट इज अ डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर आपके पास है ट्री अपीयरेंस। देखो पहले और बहुत सारी सेटिंग्स है, प्लीज डोंट प्ले विद द सेटिंग्स बिकॉज वन योर सेटिंग इज डिस्टर्ब, अगेन यू आर गोइंग टू फेस अ प्रॉब्लम। मैं जो सेटिंग बताते हूँ उतनी प्रैक्टिस करो। वंस यू बिकम ए एक्सपर्ट यू कैन प्ले विद द सेटिंग्स। अभी मोबाइल आपने नया लिया, मोबाइल लेने के बाद क्या करते हैं, बहुत सारी सेटिंग करने के लिए गए तो फिर से फॉर्मेट करना पड़ेगा आपको मोबाइल। सो डोंट प्ले विद द सेटिंग्स, इट मे बी सॉफ्टवेयर और एनी अदर डिवाइसेस। once you are familiar with that settings, you will play with the settings. Okay? जब तक आपको सेटिंग के बारे में समझ में नहीं आता तब तक सेटिंग के बारे में उसके छेड़छाड़ मत करो। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिकेशन ट्री। अभी आपको मैं क्या पढ़ा रहा था, स्पेसिफिकेशन ट्री आपको कैसा दिखेगा उसके बारे में हम करते हैं। तो इस पे देखो अभी क्या है, जस्ट अ मिनट, विल कम बैक। टूल्स, ऑप्शन, इसके ऊपर पहले हमने किसके ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करना है। डिस्प्ले, फर्स्ट ऑप्शन इज स्पेसिफिकेशन ट्री अपीयरेंस। ट्री अपीयरेंस में ऑलरेडी द टिक इज क्लासिकल विंडोज फाइल। अभी आपके पास कैसे क्लासिकल है, हमने जो भी क्लासिफिकेशन करते हैं एक के नीचे एक, तो ये सर ये मेरे को नहीं चाहिए, आई वांट द डिफरेंट वन। सो यू कैन पुट हियर द कंस्ट्रक्टिव और हिस्टोरिक, कंस्ट्रक्टिव हिस्टोरिक, देन ओके। देखो आपका स्पेसिफिकेशन पे कहाँ पे चले गया, इट विल गो बॉटम साइड, इसके ऊपर क्लिक करो और ऐसा बढ़ा जाएगा। इट विल टेक मोर स्पेस, व्हाई दे आर नॉट यूजिंग, इट विल टेक मोर स्पेस। आपका जो भी ड्राइंग एरिया है तो उसका पूरा एरिया ले रही है, तो इसीलिए इसको प्रीफर नहीं करते। तो आप यूज करना तो कर सकते हो इसको, ऐसा कुछ नहीं। आपका ये कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ गया एग्जैक्टली बॉटम साइड एंड सेंटर। ओके, ये पार्ट हो गए। नेक्स्ट, टूल्स, गो टू द ऑप्शन, डिस्प्ले, ट्री अपीयरेंस, स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखो अभी कहाँ पे आ गए, इधर आ गए, उल्टा आ रही है। ये देखो इसके ऊपर क्लिक किया तो अगेन इसके बीच में आ गए। तो इट विल टेक अराउंड, कितना स्पेस ले रहा है आपको, पूरा आधा स्पेस ले रहे हैं इसमें से। तो दिट इज ऑल्सो नॉट कम्फर्ट फॉर अस, तो इसको इसमें छोड़ देंगे। नाउ टूल्स, गो टू द ऑप्शन, लास्ट वन देखते हैं, रिलेशन। रिलेशनल्स में क्या दिखेगा, नाउ सी हियर इट इज ऑल्सो सेम। हम जो क्लासिफिकेशन बनाते हैं ना, हीट इंजन इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एसआई इंजन, सीआई इंजन, उसके अंदर फिर से बहुत सारी क्लासिफिकेशन आएगा। तो इन दिस वे, so normally you are going to preferring tools, sorry, options, please click on the classical window. Okay, why it is preferring, because it is goes only the this much of space, और ऐसे नीचे नीचे चले जाएगा। समझ में आ गया आपको, यस सर, नो, वेरी गुड। अभी सर मेरे को स्पेसिफिकेशन ट्री नहीं चाहिए, अभी मेरे को जो इतनी भी जगह छोड़ना नहीं चाहिए, तो अब क्या करने का आपको,
जस्ट a minute. The your specification tree is hidden, मैंने इसको गायब कर दिया, तो कैसे करना है? शिफ्ट, असल नहीं तो डायरेक्टली आपके पास लैपटॉप में कभी कभी क्या होता है, सॉरी, F3 दबाओ। F3 कैसे दबाएंगे? आप डेस्कटॉप में तो डायरेक्टली F3 बटन दबाने का, दैट विल हाइड द स्पेसिफिकेशन ट्री। वापस आपको चाहिए तो लैपटॉप में क्या रहते हैं, फंक्शन F3 बटन रहते हैं। नाउ इट इज क्लियर, यस और नो? आई एम रिपीटिंग सर, आई डोंट वांट टू द स्पेसिफिकेशन ट्री। स्पेसिफिकेशन ट्री आपको नहीं चाहिए तो क्या करना है? F3 बटन को दबाना है, तो गायब हो जाएगा। सर वापस चाहिए तो अगेन यू क्लिक ऑन द F3 बटन। लैपटॉप में कभी कभी फंक्शन F3 रहते हैं, सीधे कंट्रोल के बगल में रहते फंक्शन F3, तो गायब हो जाएगा। यस और नो? इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो कभी कभी क्या होता है, आपको स्पेसिफिकेशन ट्री दिखते ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं पता है क्या? देखो, शिफ्ट F2 को दबाते हैं, मैं शिफ्ट F2, बराबर। देखो मैं क्या करते, स्क्रीन से बाहर चले गए। नो, जस्ट ऑल ऑफ इट चेक हियर, यू कैन सर्च एनीवेयर, यू आर इन द यूट्यूब आल्सो, यू आर नॉट गेट दिस टाइप ऑफ ट्रिक, आपको यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा इन डेप्थ। ओके, कभी कभी क्या करते हैं, इन द एग्जामिनर यू आर गो टू द इंटरव्यू, अपने इंटरव्यू के लिए गए जाते, तो व्हाट विल द इंटरव्यू, व्हाट विल दैट दे आर गोइंग टू मेक द सेटिंग, तो वो क्या करेगा, स्पेसिफिकेशन ट्री को इधर साइड में रख देते हैं ऐसा। तो दैट इज आउट ऑफ योर स्क्रीन, स्क्रीन का बाहर देख रहे, यू कैन सी द ब्लू स्क्रीन, दैट इज योर वर्किंग एरिया। तो अभी मैंने क्लिक करते तो आपको दिखेगा भी नहीं है, दिख रहा है कि आपको स्पेसिफिकेशन ट्री ऑलरेडी मैंने हाइड नहीं किया, फिर भी स्पेसिफिकेशन ट्री आपको दिखेगा नहीं। आप फिर भी दबा के देखो तो भी नहीं मिलेगा। ओके, अगेन इफ यू वांट शिफ्ट F2 दबाने का, तो क्या आएगा, वापस इसको इधर लेके आने का। देखो, नाउ इट इज कमिंग टू दैट कॉर्नर, आप कहाँ पे भी रख सकते हो इसको। देखो, यू कैन पुट एनीवेयर, नॉट ओनली फॉर द राइट कॉर्नर, यू कैन पुट इन द राइट बॉटम एनीवेयर, आपको कहाँ पे भी जाएगा ना उधर, उसको ऐसा करो। इज इट क्लियर? you can put anywhere of your screen. That is very very important setting in the specification tree. I hope you understand this part. समझ में आ गया आपको ये पार्ट? शिफ्ट F3 दबा के आपको ये करेगा एग्जामिनर, आप जब इंटरव्यू के लिए जाता ना, तो स्पेसिफिकेशन ट्री हाइड करके रखेंगे। आप क्या करेंगे, नॉर्मली यू आर क्लिकिंग ऑन F3, सर इट्स नॉट शोइंग, तो तब क्या करने का, प्लीज क्लिक ऑन शिफ्ट F2 बटन। शिफ्ट F2 किए तो क्या होगा, वो स्क्रीन से बाहर रहते। देखो अभी मैं शिफ्ट F3 दबाते, ओके, शिफ्ट F3 और F2 दिख रहे कि आपको नहीं दिख रहे? अगेन आई विल क्लिक ऑन शिफ्ट F2, तो आपको प्रॉपरली दिखेगा। मेरे को लगता है कि आप सबको समझ में आ गए। एनीबडी हैविंग डाउट? नो ना? ओके, गुड, वेरी गुड। सो नाउ आई विल कम टू द वन मोर सेटिंग हियर। ऊपर आपको क्या दिख रहे हैं, पार्ट दिख रहे हैं। ओके, दिस इज अ पार्ट, सो आई वांट टू एडिट योर नेम। फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग असेंबली, असेंबली में कितना, देयर आर द नंबर ऑफ पार्ट्स आर देयर, 1000 पार्ट्स आर अवेलेबल इन ए सिंगल असेंबली। एट दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द पार्ट्स। सब पार्ट्स को रिमेंबर रखने के लिए हम तो मशीन नहीं है, और वी आर द ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर ऑल द 1000 पार्ट्स इन एट अ टाइम। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है कि उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। किसके ऊपर? इसके ऊपर, पार्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, गो टू द प्रॉपर्टीज, वेर इट इज, इसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर जाना है। नाउ विल गो टू द प्रोडक्ट, देन गिव द नेम, आई विल गिव द माय नेम आर ए पंचाल। ओके, तो just you can put the part name, it may be nut bolt whatever it may be, see here automatically the part name it changes। कर सकते हैं आप? yes or no? वेरी गुड। तो मैंने क्या करा है, राइट क्लिक, गो टू द प्रॉपर्टीज, and I will tell you the what is the mechanical mass graphics and product, every time I'm going to explain one by one। अभी आपकी जो दिख रहा है वही मैं आपको पढ़ा रहे, तो पूरा सेटिंग मैं बाद में बताऊंगा। ओके, इट इज कॉल्ड एज एडवांस लेवल। ओके, जो प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आई विल राइट द नेम ऑफ नट। अभी मैं नट को डिजाइन करना है, तो आप और ओके, आप कुछ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इट इज बाय डिफॉल्ट विल शोइंग व्हाइट कलर, तो प्रॉपर्टीज, देन विल गो फॉर द ग्राफिक्स। बाद में आप कलर भी चेंज कर सकते हो उसका, अभी तो अपने पास प्रोडक्ट नहीं है इसलिए कुछ कलर कलर नहीं दिख रहे, तो बाद में वो सारी चीजें आएगा। आई विल कम बैक इन द लेटर पार्ट, जस्ट यू रिमेंबर दिस मच ऑफ पार्ट। इज इट क्लियर? दैट इज द सेकंड सेटिंग। नाउ, now I'll come to the next part.
Next setting, tools, unit conversion. Because your drawing will be in the various units are there. It may be centimeter, millimeter, kilometer, foot, whatever it may be. आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द गिवन ड्राइंग, आपको जो भी ड्राइंग आपको देते हैं टूल टेस्ट में, आपको जो भी ड्राइंग देते हैं, तो वो कौन सा यूनिट में, इट मे बी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फुट, किलोमीटर, वॉट एवर इट मे बी, हाउ टू कन्वर्ट इट, एवरी डायमेंशन को आपको कन्वर्ट करने के लिए टाइम नहीं रहते, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको, गो टू द टूल्स, अगेन ऑप्शंस. देखो इसके अंदर क्या है आपके पास, पैरामीटर्स, यू आर गेटिंग दिस पार्ट. देखो कभी कभी किसी सिस्टम में क्या होता है, ऐसा बहुत कम रहते हैं. प्लीज press the control and make it sorry make your center mouse center button is up and down. It will make zoom in and zoom out. Click on the parameters, click on the parameters, go to the units, units के ऊपर क्लिक करना है. तो इसके अंदर आपको मिलेगा मीटर्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, फुट, बहुत सारी है. तो नॉर्मली इट इज बाय डिफॉल्ट इज द मिलीमीटर. सपोज आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं. ओके ओके किए तो दैट ऑल ड्राइंग विल बी कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर. Just I will put as it is millimeter. Okay. Is it clear? Yes or no? I'm repeating. Means how to convert uh, units, millimeter, centimeter, or kilometer, whatever it may be. Go to the tools, options, go to the parameters. आपको डिस्प्ले के बारे में बता दिया, और then go for the parameters. जस्ट आई एम टेलिंग द बेसिक सेटिंग, आपको मैंने बेसिक सेटिंग बता रहा हूँ, और सारी बहुत सारी चीजें इसके अंदर. आई विल टीच यू वन बाय वन व्हाइल स्टार्टिंग द वर्क बेंचेस. मैं कल से आपको वर्क बेंचेस पढ़ाने वाला. कौन सा, स्केचर वर्क बेंचेस. एट दैट टाइम आई विल टेक द ऑल सेटिंग्स वन बाय वन. ओके. so parameters, in that I will to check in the units, so go for the meter, centimeter, whatever it may be. Is it clear? देखो once again I'm repeating, tools, option, पैरामीटर्स, यूनिट्स, देन क्लिक व्हाट यू वांट. आपको कौन सा भी चाहिए, मिलीमीटर चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए, मीटर चाहिए, सब सब किसी में भी कर सकते हैं आप. ओके, देन गिव ओके. ये हो गया अपना नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट सेटिंग विल बी देयर. फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी आर इन द पार्ट मॉडल. ओके, आपको कैसा पता चलेगा, इसमें आपने क्लिक करके देखना है. सर आई वांट टू गो स्केचर. फॉर एग्जांपल आई विल गो फॉर द सेलेक्ट एनी वन प्लेन. अब इसके अंदर बहुत सारी प्लेन्स है, तो the orange color is indicates, just I will teach you only the two colors now. The orange color is indicates to select. Orange color का मीनिंग क्या होता है, to be select. क्या होगा, देखो अभी मैंने इसको किसके ऊपर लेके जा रहे हैं, तो मीन्स ये सेलेक्ट होने के लिए तैयार है, तो इसके ऊपर क्लिक किया, नाउ इट इज सेलेक्टेड. ऑरेंज कलर इज सेलेक्टेड. ऑरेंज इसके साथ में ब्लू आ रहे हैं, तो ब्लू इंडिकेट्स टू बी सेलेक्ट, टू बी सेलेक्ट, एंड द ऑरेंज कलर इज सेलेक्टेड. इज इट क्लियर? ऑरेंज कलर का मीनिंग क्या होता है, आपने कौन सा प्लेन सिलेक्ट किया, अभी देखो मैंने मूव कर्सर को मूव कर रहे थे, इसके ऊपर लेके जा रहे हैं, तो कौन सा प्लेन रेडी हो रहा है, ब्लू कलर इंडिकेट्स टू बी सेलेक्टेड, टू बी सेलेक्टेड. मैंने इसके ऊपर एक बार क्लिक किया, नाउ इट इज सेलेक्टेड. यू कैन मूव योर कर्सर एनीवेयर, द प्लेन इज सेलेक्टेड. इसके बाद क्या करना है आपको, ऊपर देखो, अभी मैं कमांड के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते. जस्ट यू कैन सी हियर देयर इज अ स्केच, आपको दिख रहा है ना स्केच, तो स्केच के ऊपर क्लिक करना है. स्केच के ऊपर क्लिक करके यू कैन सेलेक्ट एनी वन प्लेन, गो टू स्केचर. अभी हम 2D पे आ गए. देखो आपको कंफ्यूजन होगा, सर मैं कहाँ पे आ गए, तो इसीलिए क्या करना है, जस्ट यू गो गो देयर एट द टॉप राइट कॉर्नर. तो उसमें देखो अभी कहाँ पे हम, स्केचर पे है. इसके ऊपर देखो अभी अपने पास स्केचर है, पार्ट डिजाइन है, असेंबली है. हमने तो शॉर्टकट बनाया था, तो आपको कंफर्म करने के लिए एक बार इसके ऊपर कर्सर रखना है, तो ऑटोमेटिकली बताएगा कहाँ पे हम स्केचर पे है. फॉर एग्जाम्पल, सर आई डोंट वांट द स्केचर, नाउ इट इज इन 2D. अभी पेन वगैरह 2D में कन्वर्ट हो गए, बराबर. तो मैंने वापस आने के लिए इधर और एक नीचे एग्जिट वर्क बेंच, उसके नीचे और एक टूल आएगा, व्हाट इज इट, एग्जिट वर्क बेंच. इसके ऊपर क्लिक करो, तो वापस अपने आप 3D पे आ गए. देखो अगेन आई एम रिपीटिंग, सेलेक्ट एनी वन प्लेन, कौन सा भी प्लेन ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं. तो मैं बाद में बताऊंगा कि
ए प्लेन लिए तो क्या होगा? ओके, सेलेक्ट एनी वन प्लेन, click on sketcher. उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो. So just click on the sketch, that will go for the 2D. Again exit workbench, will come back to the 3D. Now we are in the पार्ट डिजाइन. देखो अभी पार्ट डिजाइन दिखा रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है, गो टू द sketch, that will come back. Just a minute. Now what I'm going to explain you, आपको मैं क्या explain करने के लिए आया इधर, one more setting is there. What is the important setting here? तो अभी देखो इसके अंदर बहुत सारी इससे छेड़छाड़ हो चुका है, इधर बहुत सारे कमांड्स इधर उधर 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 हो गए. तो क्या करना है, राइट क्लिक, गो टू द कस्टमाइज. प्लीज रिमेंबर, फॉर एग्जांपल सर अभी मेरा पास कौन सा नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा आपके पास कौन सा है, इसका नाम मैं बताऊंगा. इसका टूल बार का नाम क्या, ऑपरेशन है. बाई मिस्टेकली आपके पास क्या होगा, जस्ट हाउ इट्स शो. ओके, इट्स शोइंग लाइक ऑपरेशन. ओके, ये ऑपरेशन टूल बार है ना, तो बाई मिस्टेक आप क्या करते हैं, गायब हो जाते हैं आपसे, मेरे को मिलते ही नहीं है. फॉर एग्जांपल एक प्रोफाइल टूल बार है, एक प्रोफाइल, इसका मीनिंग क्या है, प्रोफाइल टूल बार है, आपको बाद में कल बताऊंगा इसके बारे में सारे. प्रोफाइल टूल बार एक गायब होगा आपसे, आपको पता भी नहीं इसका मीनिंग क्या है, तो एक गायब कर देते हैं आप. सर कहाँ से ढूंढेंगे इसको, ऐसे स्टूडेंट घबराते हैं. तो डोंट वरी अबाउट दिस. राइट क्लिक, गो टू द कस्टमाइज, देन गो टू द टूल बार्स. क्या किस पे क्लिक करना है, टूल बार्स पे. रिस्टोर पोजीशन, इधर क्या है, रिस्टोर पोजीशन, इसके ऊपर क्लिक करना है, ओके करना है. नाउ ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाता है सब, जो भी कमांड्स आना आपके पास सब रिस्टोर हो गए. बाकी का क्लोज करके रख दो. जितने भी टूल बार आपने गायब कर दिया था सारे टूल बार आ जाते हैं. देखो फॉर एग्जांपल इसका नाम क्या है, इसको ड्रैग करो और ऊपर लेके जाओ स्टार्टिंग में इधर स्टैंडर्ड टूल बार पे, और इसको नीचे ड्रैग करो, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. उसका नाम क्या है, प्रोफाइल है. आपको पता है प्रोफाइल टूल बार है, तो बाई मिस्टेक आपने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया, मीन्स बंद कर दिया. तो अभी मेरे को वही चाहिए, तो क्या करना है, राइट क्लिक करना है. अब उसका नाम आपको पता है, व्हाट इज दैट, प्रोफाइल. ये बंद हो गए देखो इधर से, इसको क्लिक किया तो ऑटोमेटिक आ जाता है, ये क्लोज किया तो निकल जाएगा. वापस कैसा लाने का, राइट क्लिक, राइट क्लिक एंड हियर प्रोफाइल टूल बार. इन केस फॉर एग्जांपल इसको देखो, अभी मैंने इसको इधर लिख आया था, व्हाट इज द टूल बार नेम. ये टूल बार का नाम क्या है, अभी इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करें, जस्ट आई एम टेलिंग, आई एम टीचिंग यू द सेटिंग. इसका बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, कमांड वगैरह कैसे यूज करना है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ड्राइंग करने के लिए क्या क्या यूज हो सकते हैं. ओके, सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रेंट. आप क्या किया, अपने मिस्टेकली कंस्ट्रेंट टूल को क्लोज कर दिया है. आपको नेम पता है तब आप ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज नहीं. तो क्या करना है, राइट क्लिक करना है, क्या था उसका नाम, कंस्ट्रेंट, तब भी आप ऑन कर सकते हैं. आपको पता ही नहीं है उसका मीनिंग के बारे में, तब क्या करना है, राइट क्लिक, गो टू द कस्टमाइज, टूल बार्स, रिस्टोर, इधर है ना रिस्टोर, रिस्टोर पोजीशन ऑफ ऑल टूल बार्स, ओके बोलने का सीधा. तो सारी टूल बार्स आ जाते हैं, आपने जो भी क्लोज किया और नहीं किया सब आ जाता है, अपना अपना जगह पे बैठ जाएगा. तो उसको बाहर कैसे खींचने का, इधर देखो एक आपको बार मिलेगा, तो बार से इधर बाहर खींचने कैसे, दिख रहा है ना, यू कैन ड्रैग इट, सॉरी, आपको होल्ड इट एंड ड्रैग इट, तो इसके अंदर छुपा रहते हो, तो उसको ऐसा ड्रैग करना है. इज इट क्लियर, यस और नो. इसके अंदर से आप जितने भी टूल बार को सब बाहर खींच सकते Last one self repeat ಮಾಡ್ಕೊಂಡು हो. ओके, ಸ್ವಲ್ಪ इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो. Okay. Now, these are the basic settings. Please practice up to the today session, today part, because I will teach more and more in the first day. Again, you are going to confusion. I think so. It is enough for today. I will explain you tomorrow. Uh, Hello. Any doubt regarding up to here?
कौन सा? ओके। हाँ देखो, अब आपको क्या करना है, जस्ट आई विल शो यू। देखो अभी मैं क्या करूंगा, आई विल एग्जिट वर्क बेंच। बाय डिफॉल्ट मैं स्टार्टिंग से करता है, ठीक है। आई विल क्लोज एवरीथिंग because some or one or two students are joined newly, so just I'm repeating the same part. Last setting. Some students are asking about the Kannada because is it okay for other students? uh, uh, okay, I know five languages. Okay, okay. If you have any doubts, you could please contact me. I know five languages like Marathi. Presently, I'm working in Maharashtra. Okay, I know Marathi. Okay, I know five languages: Kannada, Hindi, English, Marathi. I know little bit Telugu. Okay. If you want, please contact personally. I will explain you once again. Okay, don't worry. So in the session, I will explain you only in the Hindi and English. Okay. What we are going to do? Start sketcher. आपने sketcher के ऊपर भी क्लिक किया तो कहाँ पे चला जाएगा डायरेक्टली? It will go for the partition. Just I will show you. देखो आप इसमें partition में चले गए और आपका जो टूल बार है इधर उधर बिगड़ गए होगा, तो क्या करना है? राइट क्लिक, गो टू द कस्टमाइज। समवन इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। क्या करना है आपको? कस्टमाइज में जाना है, देन क्लिक द टूल बार्स। टूल बार के अंदर क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको? रिस्टोर पोजीशन, इसमें ना रिस्टोर पोजीशन। नाउ क्लिक ऑन द रिस्टोर पोजीशन, तो अपने अपने जगह पे चले जाएगा वो। आपको कुछ करना जरूरत नहीं है, तो अपने अपने जगह पे बैठ गए। देखो मैं कुछ भी नहीं किया, पूरा अपना स्क्रीन खाली हो गए। समझ में आ गए? तो इसके अंदर समझो कि अभी इसके अंदर से एक टूल बार इसका अंदर वर्टिकल रखो तो आपको पूरा नाम नहीं दिखेगा। उसको क्या करने का? ड्रैग करके ऊपर छोड़ देने का, इधर ऊपर। ओके। नाउ अगेन यू ड्रैग डाउन, वापस उसको नीचे लेके आना। अभी इसका नाम आपको पता चलेगा क्या है? स्केच बेस्ड फ्यूचर। ये 3D में हम पार्टीशन में उसका नाम क्या है? स्केच बेस्ड फ्यूचर्स। तो ये आपने क्लोज कर दिया बाय डिफॉल्ट। देखो अपने इसको क्लोज कर देते हैं। तो आपको वापस नहीं मेरे को वापस चाहिए तो क्या करने का? राइट क्लिक करना है इसके ऊपर। उसका नाम क्या था? स्केच बेस्ड फ्यूचर। देखो इसमें नीचे देखो, इधर ऐसा देखने का, इसमें ढूंढो इधर। इधर ये देखो स्केच बेस्ड बेस्ड फ्यूचर, इसके ऊपर क्लिक किया ना बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। तो अगेन देखो इसके अंदर बहुत सारी रहते हैं, तो आपने इधर बाहर रखा है इधर ऐसा। तो बहुत सारी टूल का नाम आपको याद करना पड़ेगा अब ये धीरे धीरे। तो मैंने क्या कर दिया, इसका क्या है नाम है देखो, नाउ आई टेक इट द पेन सिस्टम। हियर देयर इज द रेफरेंस एलिमेंट, इसको मैंने क्लोज करते हैं। वापस वही चाहिए आपको, रेफरेंस एलिमेंट। राइट क्लिक करना है, तो रेफरेंस एलिमेंट देखो कहाँ पे हो। रेफरेंस एलिमेंट इधर है ना, कॉम्पैक्ट। इसके ऊपर क्लिक किया तो वापस आएगा। सॉरी, राइट क्लिक, गो टू द रेफरेंस एलिमेंट, तो आ गए इधर। तो ये पूरा वापस लाइसेंस। ओके। राइट क्लिक, go to the customization and restore toolbar, restore position. Okay, close. So I hope you understand this part now. Yes or no? Hello. Okay. Uh, now I'm asking to all the students. I hope all of you installed your software properly in your laptop. Tomorrow onwards, the practical session will be there because I want to explain the basic commands on Sketcher Workbench. Then we'll go for the tomorrow also one more class for the setting, only the commands, how to make the command setting. Okay. Someone is asking me how to make the crack of CATIA software. Shall I explain this part? Yes or no? Okay. Someone is asking me how to make the crack, and somebody having difficulty. सबको बहुत सारी difficulty लग रहे हैं, तो कैटिया कैसे इंस्टॉल करना है, तो मैं उनको भी मैं गाइड करूंगा। ओके, जस्ट आई विल शो हाउ टू मेक द क्रैक। यस सर। सॉरी सर।